दिल नहीं है। स्क्रीन शोर हो रही है स्टूडेंट्स? हो गई सर। हाँ, so ultimately let me join over here also. Now we can see screen share हो रही है? Yes, sir. Yes, you have joined the screen and the screen is being shared. Share हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है सर शेयर। मेरे इसमें हो नहीं रही तो मैंने पूछा। Okay. Now, ये हो गया voltage source. Voltage source can be represented in two ways, either this way or this way. There is also a source resistance. जो source resistance होता है वो हमेशा सीरीज में होता है। ये हमने 12th क्लास में भी पढ़ा था। वोल्टेज का सोर्स रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में होता है। जो भी बैटरी है, जो भी सोर्स है वोल्टेज का, उसका सोर्स रेजिस्टेंस हमेशा उसके सीरीज में होता है। ओके, नाउ दिस RS is the source resistance of the battery. So we have got source resistance always in series with the source, with the voltage source. Now this was there in 12th class also. Our voltage sources अब करते थे और उसके जो इंटरनल रेजिस्टेंस होते थे, बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता था जिसको कहते हैं सोर्स रेजिस्टेंस, वो हमेशा बैटरी के सीरीज में होता है। हमने 12th में भी पढ़ा था इसको। दूसरा सोर्स होता है करंट सोर्स, ये हमने नहीं पढ़ा 12th में। तो करंट सोर्स को हमेशा इस तरीके से शो करते हैं, राउंड एंड दिस। इसका जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा इसके पैरेलल में होता है। वो क्यों होता है? इसके पैरेलल में क्यों होता है करंट के, और वोल्टेज के सीरीज में क्यों होता है, इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा, वो भी आपको बता दूंगा। As you go in more numericals, then you will come to know why the source resistance of the voltage source is in series and why the source resistance of the current is in parallel. Is it right? Yeah, within 2 or 3 classes that will be very easily explained to you. Okay. इसमें कोई दिक्कत? Voltage and current sources, students, there are 2 types of sources. One is called the voltage source and other is called the current source. Okay, and a voltage source is always represented by a voltage in series with its resistance. Okay, and a current source has got a current source and its source resistance is in parallel. Okay, ये हो गए आपके प्रैक्टिकल सोर्सेस। और जो आइडियल सोर्सेस होते हैं, द आइडियल सोर्सेस इन आइडियल सोर्सेस, दीज आर प्रैक्टिकल सोर्सेस। ये दोनों क्या आपके प्रैक्टिकल सोर्सेस हैं। These are your practical sources जिनका लॉस होता है। This source system means losses. Source system always means losses, loss. जो आइडियल सोर्सेज होते हैं, करंट एंड आइडियल सोर्सेज, जो आइडियल सोर्सेज होते हैं चाहे करंट हो या वोल्टेज हो, उनका सोर्स रेजिस्टेंस हमेशा जीरो होता है। उनका सोर्स रेजिस्टेंस हमेशा जीरो होता है। आइडियल सोर्सेज हैव गॉट देयर सोर्स रेजिस्टेंस जीरो। दैट मींस अ आइडियल वोल्टेज सोर्स will be like this and a current, इसको ड्रॉ करते रहो, and a current आइडियल सोर्स, इसका सोर्स रेजिस्टेंस नहीं होगा, दोनों का सोर्स रेजिस्टेंस नहीं होगा। both will never have a source resistance. Ideal sources will never have source resistance. Make it very clear. They will never have a source resistance. They will never have a source resistance. उनका सोर्स रेजिस्टेंस कभी भी नहीं होगा। ठीक है, RS is never there or is absent. Okay, इसको नोट कर लेना। अभिजीत,
डोंट टॉक। सर सर पूछना है। हाँ ठीक है सर एग्जांपल देना। किसका? सर तीनों का। तीनों का? ये तो बैटरी है, दिस इज द बैटरी। करंट सोर्स is very difficult to make. Okay, a current source, it is very difficult to make. We make it using op amps, operational amplifiers. We use op amps to make a current source. Okay, practically we never have current sources because it is very costly to make a current source. We normally use voltage sources. Voltage sources, it is easy to make and we use voltage source only. And ideally there can never be practically or ideally there can never be a voltage or a current source without a source resistance. Source resistances are the cause of losses. ये लॉस के कॉज होते हैं. ओके, तो अभी जितना ये इसके लिए बताना था मुझे, वोल्टेज सोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, प्रैक्टिकली वोल्टेज और करंट सोर्स. और जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका जो लॉस होता है प्रैक्टिकली वो उसका सीरीज में आता है. ये सीरीज में क्यों आता है वो मैं आंसर आपको 2-3 क्लास के बाद बताऊंगा, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी सर ने ऐसा क्यों किया है. जैसे मैंने आपको मैक्सवेल लूप मेथड में बाद में बताया था कि आपको I1 I2 I3 सेम डायरेक्शन में क्यों लेना है, व्हाट इज द यूज ऑफ इट. तो व्हाट इज, why do the source resistance comes in series, that will be I will tell you in the next class, then you will understand why so. अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि वोल्टेज और करंट सोर्स जो भी होती हैं, अगर वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज हैं तो उनका रेजिस्टेंस सीरीज में होगा, और जो करंट सोर्सेज हैं उनका सोर्सेज प्रैक्टिकल जो होगा वो होगा पैरेलल में होगा. ओके, नाउ इसके बाद जो आइडियल सोर्सेज हैं उनका कभी सोर्स रेजिस्टेंस नहीं होता, बिकॉज उनका लॉस ही नहीं होता. जितना वोल्टेज वो सप्लाई करते हैं बनता है उतना लॉस होता है. ओके, रवि मंडल इज ट्राइंग टू ओपन हिज दिस थिंग नाउ. और करंट सोर्स रवि मंडल आपका वीडियो ऑन है. रवि मंडल योर वीडियो इज ऑन, आई थिंक सो. जो करंट सोर्स है, सिमिलरली करंट सोर्स जो प्रैक्टिकल है उनका भी कोई सोर्स रेजिस्टेंस नहीं होता. सोर्स रेजिस्टेंसेस आर द, ये लॉसेस को कवर करने के लिए, बिकॉज प्रैक्टिकल जो सोर्स होते हैं उनका लॉस होता है, वो लॉस इस सोर्स रेजिस्टेंस के अंदर आता है. ओके, और जो आइडियल सोर्सेज हैं उनका कभी कोई लॉस होता ही नहीं है. जब लॉस ही नहीं होता तो सोर्स रेजिस्टेंस भी नहीं होता. सोर्स रेजिस्टेंसेस कुछ नहीं होते, वो उन सोर्सेज का लॉस दिखाते हैं कि कितना लॉस हुआ. इज इट राइट? सो अल्टीमेटली अभी जो आपने बताना है मेरे को, और बच्चे ने अभी पूछा था, अभिजीत ने शायद, कि सर इनका एग्जाम्पल दीजिए. एक तो आपका करंट सोर्स जो भी है, आपका कॉमन कलेक्टर आपका करंट सोर्स एक्ट करता है. ट्रांजिस्टर आपका, क्योंकि हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है. ठीक है, करंट सोर्स जो है और ऑप एम्प्स, इनको यूज करके हम करंट सोर्स बनाते हैं. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड कॉस्टलियर. सबसे बड़ी बात है RS की वैल्यू बहुत हाई होती है, इतनी हाई होती है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी हाई वैल्यू ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस हैज टू बी यूज्ड. लेकिन वोल्टेज सोर्स वेरी इजी लाइक बैटरीज. इज इट राइट? सो वी शुड फोकस ऑन दोस थिंग्स व्हिच इज देयर इन आवर सिलेबस फर्स्ट. ठीक है, वोल्टेज सोर्स जो है उसका सोर्स सीरीज में होता है, जो करंट सोर्स है उसका सोर्स पैरेलल में होता है, और जो आइडियल सोर्सेज है उनका कोई लॉस ही नहीं होता तो उनका सोर्स रेजिस्टेंस नहीं होता. इज इट राइट? नाउ इसको एक बार नोट कर लेना और इसकी फोटो खींच लो. अंकुश एंड अमन, आप ग्रुप में डाल दो इसको, इसकी फोटो, और बाकी लोग इसको नोट भी कर लो. दैट इज वेरी मस्ट. ओके, वी आर नॉट इनटू द डिजाइनिंग. अगर किसी को दिक्कत है कि इसके क्या एग्जांपल्स हैं, मैं वो भी नरेट कर दूंगा. लेट मी कंटिन्यू. ओके, इफ यू आर सो फॉन्ड ऑफ दैट आई विल डेफिनेटली. हाँ जी, लेट मी प्रोसीड. ओके, इसकी फोटो डाल देना अंकुश एंड अमन. सर प्लीज नोट दिस. यस सर. और इसके बाद सर we'll go ahead now. Now we come to something called nodal sources, nodal analysis. पहले हमने mesh किया था, अब हम करेंगे nodal analysis. क्या करेंगे? नोडल एनालिसिस, नोडल मेथड. क्या बोलेंगे? नोडल मेथड. वेरी इंपॉर्टेंट. इसको नोट करते रहो सारे, प्लीज नोट. पहले अंडरस्टैंड करना, फिर इसको नोट भी करते रहना साथ साथ प्लीज.
जैसे आपको मैंने मैश बताया था वैसे मैं आपको नोडल भी बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान से सुनना, बस मोटी बात याद रखनी है। सोर्सेज में अभी आपको सोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वोल्टेज सोर्स, एक होता है करंट सोर्स, एक होते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज, एक होते हैं प्रैक्टिकल सोर्सेज, एक होते हैं आइडियल सोर्सेज। आइडियल सोर्सेज में सोर्स रेजिस्टेंस नहीं होता है और प्रैक्टिकल सोर्सेज में सोर्स रेजिस्टेंस होता है। बस इससे ज्यादा अभी नहीं करना, दिस इज देयर इन आवर कोर्स। ओके, कहने को इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक में अगर आप जाओगे डिटेल में तो और भी चीजें मिलेंगी, वो सारी चीजें मैं नहीं करा सकता इसके अंदर। जिसको पर्सनली चाहिए मैं उसको डिटेल दे दूंगा डॉक्यूमेंट के साथ और एक्सप्लेन भी कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आई एम अ पर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक साइड, आई कैन एक्सप्लेन हिम। नाउ सोर्सेस, और किसी का कोई इसके रेलिवेंट में डाउट होगा तो वो मैं बता दूंगा। नोडल एनालिसिस, सॉरी, नोडल एनालिसिस या नोडल मेथड, आई राइट मेथड एज शॉर्ट फॉर्म, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में भी METH भी लिख देता हूं। दिस इज मेथड, नोडल मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये बताओ, जो आपका मैश मेथड था वो KVL बेस्ड था कि KCL बेस्ड था? क्लास, जो हमारा मैश मेथड था was it KVL और KCL बेस्ड? मैश KVL। मेथड हमारा, रेज हैंड्स प्लीज, रेज हैंड्स हितेन प्लीज प्लीज। जो हमारा मैश मेथड था वो KVL बेस्ड था कि KCL बेस्ड था? रेज हैंड्स, आई वांट द रेज हैंड्स। ओके, दोज हु आस्क डाउट्स इट्स गुड बट दे शुड आंसर आल्सो, है ना? मेरे ख्याल से मैश मेथड सबको बताया, सबने बोला हाँ हमको समझ आया, रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है सबको समझ आया, मैनेजमेंट भी देख रही है कि सबको समझ आया। सर ने हर बार पूछा कि समझ आया, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर समझ आया, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हर जगह जा रही है, पूरे कॉलेज में जा रही है, पूरे पाइट इंस्टीट्यूट में जा रही है, पूरे पाइट ऑर्गेनाइजेशन को जा रही है। ओके, तो आप मुझे ये बताओ, आई शुड सी एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन रेजिंग हैंड्स, है ना? यस, हितेन, यस, स्पीक आउट, हितेन। यस सर, केवीएल हाँ पे था सर। हाँ जी, जोर से बेटा। केवीएल सर, केवीएल। इट इज KVL बेस्ड, वेरी गुड, इट इज KVL बेस्ड, वेरी गुड, इट इज KVL बेस्ड, या कह सकते हैं मैश मेथड इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ KVL। क्या बोलेंगे? रिपीट करना, मैश मेथड इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ KVL। यस, इसको लिख लेना, यहाँ उसका मॉडिफाइड वर्जन है। अभी मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, नोडल में भी बताऊंगा और उसमें दोनों इकट्ठा बताऊंगा, KVL KCL और मैश और नोडल में क्या डिफरेंस है। जब मैं नोडल खत्म कर लूंगा एक एक चीज बताऊंगा, हर क्लास में और चीजें बताऊंगा, ठीक है? अब आते हैं नोडल में। अब इसको ध्यान से देखना, जैसे हमने KVL देखा था ना, इसको भी ध्यान से देखना, देन विल बी नाउ। इसके अंदर नोडल मेथड में अगर मैं इसको देखूं, V1 R1 R2 V2 R3 R4 इसमें आप एक करंट सोर्स लो, I1 R4 V3, kindly draw it also please, start drawing with me, that will be much better for you. Okay, and now
if this is the circuit, nodal method is much better than your mesh law also, mesh method also. It can take care of voltage and current source at one time. ये वोल्टेज और करंट सोर्स को दोनों को डील कर सकता है एक टाइम में, लेकिन मैश मेथड सिर्फ वोल्टेज सोर्स को डील कर सकता है, करंट सोर्स को डील नहीं कर सकता. मैश मेथड जो है वो केवीएल बेस्ड है. मैश मेथड एक टाइम में सिर्फ वोल्टेज सोर्सेज को ही डील कर सकता है, लेकिन जो नोडल मेथड है वो एक टाइम में करंट और वोल्टेज सोर्सेज दोनों को डील कर सकता है. So it can deal at one time with both, with the current source also and voltage source. जो नोडल मेथड है, नोडल का मतलब क्या होता है? नोड इज अ जंक्शन. Node is a junction where more than two nodes meet. Node is a junction where more than three branches meet. देखो एक ब्रांच ये है, इसको पहले मैं मार्क कर लेता हूं. A, B, C, D, E, F, G and H. इससे ब्रांचेस कौन कौन सी है? What are branches? Branch is that connection which connects, which has at least one source, resistance or any element. देखिए BAHG is a branch, GB is a branch, CF is a branch, CD is also a branch, DE is also a branch, or CDE is also one branch, you can say. But HG, GF, FE are not branches. They are not branches. ये branches नहीं है. They are not branches. Because इसमें कोई element नहीं है, ना इसमें कोई source है, ना इसमें कोई resistance है, कोई element नहीं है. तो ये branches नहीं है. This is a single point, you can say. Is this clear? These are all same point, equipotential points. ये सेम पॉइंट्स हैं, चाहे इनको ऐसे बना लो या इनको ऐसे बना लो. ये सारी ब्रांचेस हैं 1 2 3 4. तो इसको लिख सकते हैं, एक नोड बना सकते हैं इनको, H, G, F, E. दे आर ऑल सेम ब्रांचेस. ओके, सेम. चाहे इनको ऐसे बना लो, एक नोड बना लो, बिकॉज दे आर इक्विपोटेंशियल. दे आर व्हाट? इक्विपोटेंशियल. ठीक है. सो दिस इज, जब तक दो पॉइंट्स के बीच में कोई एलिमेंट नहीं होता, दे आर ऑन सेम पोटेंशियल. दे आर ऑन सेम पोटेंशियल. इनका पोटेंशियल सेम है. तो इक्विपोटेंशियल को आप सिंगल पॉइंट से बना सकते हो, डिनोट कर सकते हो. इज इट राइट? सो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट इज, वी गेट अ सिंगल पॉइंट. हाँ जी, इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन करते हैं. हाँ जी, क्या? ऐसे इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन करते हैं. हाँ जी, वैसे ही सारे नोड को इक्विपोटेंशियल, क्योंकि अगर पैरेलल की बात की जाए तो उसमें भी पोटेंशियल इक्वल होते हैं सारे ब्रांचेस में. देखिए बेटे, आपने बोला पैरेलल के अंदर, ये देखिए जैसे एक ये है, हाँ एक ये है, ये इक्विपोटेंशियल है. बिल्कुल सही बोला, ये इक्विपोटेंशियल है. ठीक है. ये पॉइंट, दिस पॉइंट, इस पॉइंट जिसका वोल्टेज VB है, जिसकी वोल्टेज VC है, ये सारे पैरेलल है. ऐसे 1 2 3 4, ये सारे कनेक्टेड है. यहाँ पर इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर नहीं है. इज इट राइट? देन ओनली द करंट फ्लोज. और आई थिंक सो श्रुति सेड कि सर जो पैरेलल होते हैं वो सारे के सारे सेम पोटेंशियल पर होते हैं. ये बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये दोनों पैरेलल है, 1 2 3 4. ये उसी चीज को दूसरे मेथड से बोलने का मेथड है. ये सारे पैरेलल है, H, G, F, E, ये सारे पैरेलल हैं. तो ये सारे पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल है.
जैसे मैंने अब अभी बनाया, ये H भी हो गया, ये H से A में गया, ये G से B में गया, ये F से C में गया, H, G, F, C, H ये है ना, H से A, ये H से A गया एक ब्रांच, ये G to B ये ब्रांच, F to C और E to D, ये वाली ब्रांच। These all सर सी points नहीं are आएगा सर वहाँ, these सी all नहीं आएगा points नीचे। same। ये सारे पॉइंट सेम है, These all points are same, ये सारे पॉइंट्स आपके सेम है। कोई बात नहीं, एक बार में समझ नहीं आती है क्योंकि धीरे धीरे ही पता लग, जैसे मैथ्स में भी एक दो क्लास में क्लियर हो गया था, कोई बात नहीं, अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो एक एक करके सारा क्लियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है, ये सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, ये नीचे के सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, क्योंकि इनके बीच, मोटी बात, जिन पॉइंट्स के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है उनका पोटेंशियल सेम है। एक ही लाइन में सारी बात बता दी, ठीक है। H और A के बीच में बैटरी है तो इनका पोटेंशियल सेम नहीं होगा, इन दोनों का पोटेंशियल होगा V1। अब सिमिलरली H से लेके B तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट होगा, H और B का, बिकॉज दोनों के बीच में वोल्टेज भी है और रेजिस्टेंस भी है। A और B के बीच में भी सेम पोटेंशियल नहीं होगा बिकॉज उसके बीच में रेजिस्टेंस है। तो कभी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर कोई एलिमेंट है जिसको कहते हैं बैटरी या करंट या कोई रेजिस्टेंस, एनीथिंग, इंडक्टेंस, कैपेसिटर, कोई भी हो, तो वो डिफरेंट पोटेंशियल पर होते हैं। Is it right? Is this understood? So that means अब इसमें हमको पता लग गया कि कौन कौन से पॉइंट्स कॉमन पोटेंशियल पर हैं जिनका पोटेंशियल सेम है, वो है आपके H, G, F, E। तो सबसे पहले हमने पता लगाना है कि नोड्स कौन से हैं। नोड्स आर दोज जंक्शंस जहां पर तीन या तीन से ज्यादा ब्रांचेस मिलती हैं। नोड्स आर दोज जंक्शंस वेयर वी गेट थ्री or more than three branches meet। कौन से पॉइंट्स हैं वो? 3 और more than 3 branches meet। कौन कौन से पॉइंट है वो बताओ, कौन से पॉइंट्स हैं? B बस, और C और कोई? G, F नहीं है। यही तो मैं चाह रहा था कि आप बोलो ये चीज, ये कॉमन पॉइंट है बेटा। ओके सर। ये तो कॉमन पोटेंशियल है, ये तो कॉमन पोटेंशियल है आपका, तभी मैंने कॉमन पोटेंशियल पहले बताया, क्योंकि इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो ये तो कॉमन सिंगल पॉइंट है। ये दिस अ कॉमन सिंगल पॉइंट, जहां से हम A में भी जा रहे हैं, जहां से हम B में भी जा रहे हैं, जहां से हम C में भी जा रहे हैं और जहां से हम D में भी जा रहे हैं। एक्चुअली ये पॉइंट कॉमन है, और ये पॉइंट है H भी है और G भी कह सकते हो और F भी बोल सकते हो और E भी बोल सकते हो इसको, बिकॉज इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। यहां पर ये ब्रांच मीट कर रही है, ये तो ब्रांच ही नहीं है। यहां पर ये ब्रांच मीट करेगी और ये दोनों तो कोई ब्रांचेज ही नहीं है। यहां पर ये ब्रांच मीट करी, ये दोनों तो ब्रांचेज ही नहीं है। यहां पर ये ब्रांच मीट करी, ये वाली तो ब्रांच ही नहीं है, तो ये कभी भी नोड नहीं हो सकते। हेंस प्रूव्ड। नोड्स, नोट कर लो इसको, लिख लो, नोड्स वो जो जंक्शंस होते हैं जहां पर तीन या तीन से ज्यादा ब्रांचेज मीट करती हैं। पहली बात तो ब्रांच क्या होती है? जब भी दो जंक्शंस के बीच में कोई एलिमेंट हो, एलिमेंट का मतलब रेजिस्टेंस, वोल्टेज, इंडक्टर, कैपेसिटेंस, कुछ भी हो, या करंट सोर्स, कोई भी सोर्स हो या कोई भी चाहे वोल्टेज हो या करंट हो, एलिमेंट का मतलब कोई भी सोर्सेस या कोई रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस, उसको ब्रांच बोला जाता है। इज इट राइट? तो नोड्स आर दोज वेयर 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस मीट। ये बात समझ आई क्लास को? यस क्लास, व्हाट इज अ ब्रांच? What is a branch? What is a branch? Yes, speak out. Raise hands. Branch किसको कहा जाएगा इसमें? Which have a particular element between. Raise hands तो किया नहीं यार, गुनग्या बोल रहा था।
रेज हैंड करके बोलोगे ज्यादा अच्छा होगा। यस वरदान, स्पीक आउट। व्हाट इज अ ब्रांच चाइल्ड? यस वरदान। वरदान सिंगल। आई होप यू आर कनेक्टेड वरदान। Abhijit is speaking, I think so. Yes, Vardhan. Are you there in the class or not? You joined first in the class. You're not speaking out. Only 3 students are raising hands up in the class. Gunagya, Abhijit, Rudransh. What about others? Shruti. ध्यान से देखो, ब्रांच किसको बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं जहां पर कोई एलिमेंट आए। अगर 2 पॉइंट्स के बीच में कोई एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस, उसको ब्रांच बोलते हैं। यस, स्पीक आउट। यस अभिजीत, स्पीक आउट। सर AH BG वेरी गुड। BG, देन CF नहीं CF, DE और देखो AB, AB और क्या? BC BC, CD, बोलो। बस BC, AB, करंट सोर्स वाली भी, और BC। सर BC तो हो गया। हाँ BC 2 बार होगा ना, एक बार BC ये होगा, एक बार BC ये भी होगा। ओके सर। ये देखो करंट सोर्स वाला अलग है ना, पैरेलल में है। ये 2 ब्रांचेज हैं, बी और सी में 2 ब्रांचेज हैं। कितनी ब्रांचेज हैं? रेज हैंड्स। इस सर्किट में कितनी ब्रांचेज हैं? रेज हैंड्स। इस सर्किट में कितनी ब्रांचेज हैं? चलो विल कम टू दैट नाउ। इस सर्किट में कितनी ब्रांचेज हैं? रेज हैंड्स नाउ। इस सर्किट में कितनी ब्रांचेज हैं? रेज हैंड्स। सारे डायग्राम ड्रॉ करके बैठो। इस सर्किट में कितनी ब्रांचेज हैं? रेज हैंड्स। यस मिस्टर आनंद, स्पीक आउट। यस सर। इस सर्किट में कितनी ब्रांचेज हैं बेटा? सर AB, वेरी गुड। AB, वेरी गुड। BC, हैं? BC 2 ब्रांचेज हैं। हाँ 2 ब्रांचेस हैं सर। तो टोटल गिनती करके बताओ ना मुझे। ठीक है AB 1 हो गई, BC 2 हो गई, 3। आगे चलो। यस सर। BG 7, BG 1 हो गई, यस। 4 हो AH गया। 1 होगी, AH आराम से। AH AH, हाँ कितना हो गया? 5। यस सर। आगे चलो, गिनते जाओ ना। CF 6 होगी। हाँ आगे। सर DE 7। आगे सर CD 8 हो गए सर। DE, हाँ। अब समझ आई कितनी ब्रांचेज है? यस सर। हर एक का ब्रांच करंट निकालना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले नोडल मेथड में हम क्या देखते हैं? नोड्स। सबसे पहले ब्रांचेस देखेंगे। ब्रांचेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वेरी गुड, 8 ब्रांचेस होगी। इसके बाद हमने देखना है नोड्स कौन सी हैं। नोड्स कौन से पॉइंट होते हैं? रेज हैंड्स। व्हाट आर नोड्स? रेज हैंड्स। व्हाट आर नोड्स? एक सर्किट में नोड्स किसको बोला जाता है? श्रुति डोंट स्पीक। नोड्स किसको बोला जाता है? गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर रेजिंग हैंड्स। वेरी गुड, आई एम फाइंडिंग गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रेजिंग हैंड्स। अंकुश गुप्ता, यस सर। नोड्स किसको बोला जाता है अंकुश? सर नोड जो होते हैं सर, जहाँ 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस मीट करती हैं। जहां लिखा हुआ वही पढ़ रहा है क्या? नहीं सर, वो yes, तो sir. होता है ना। जस्ट जोकिंग। वो बाई चांस मेरे को दिख गया ना यहाँ पर अभी। ओके हाँ, इसमें नोड्स कौन कौन सी हैं?
और सर क्यों? इसमें नोड्स हैं सर, एक बी और सी अंकुश सर। एक मिनट, थोड़ा जोर से बोलना, एक्चुअली ना आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर बी एंड सी। वाई? रीजन बताओ मुझे, बी और सी नोड्स क्यों है, इसको प्रूव करो। सर बी इसलिए क्योंकि सर बी पे ए भी मीट कर रही है, जी भी मीट कर रही है और सी भी मीट कर रही है। कितनी ब्रांचेस मीट कर रही है मुझे ये बताओ, नंबर बताओ। सर बी पे सर 3 कर रही हैं। 4 ब्रांचेस, 4 बेटे, 4 4 कर रही 1 है। 2 3 4। बीसी भी कर रही है। हाँ ये देखो, 1 2 अरे 3। सर ये ऊपर वाली भी है क्या? हाँ हाँ, करंट दिख नहीं रहा, सर मैंने ऊपर वाली ध्यान नहीं दिया। मार्क हाँ ध्यान नहीं दिया सर क्या? ध्यान नहीं दिया। अरे ये बोली एग्जाम सर में ध्यान नहीं दोगे तो बैठ जाओगे। नहीं सर प्रैक्टिस। 4 4 ठीक है ना, 4 क्लियर है ना क्लास? बेटे yes, कोई yes. बच्चे का डाउट प्लीज। बी में 4 ब्रांचेस मीट कर रही हैं तो बी तो नोड बन गया, हैंस प्रूव की बी तो नोड है। किसी बच्चे का कोई डाउट कि नोड कब बनता है? देखो मैं किसे अभी आप जवाब नहीं ले रहे हो, जब मैं पूछूंगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा प्लीज। अगर आपका डाउट है कि नोड कब बन रही है, ये बी नोड क्यों है, अगर किसी का वो डाउट है तो एक्सप्लेन, यू कैन आस्क मी राइट नाउ प्लीज, डोंट हेजिटेट। यस क्लास। रुद्रांश हाँ बोलो बेटा। सर ये जैसे ये बीडी भी तो एक ब्रांच है। एक मिनट, क्या बोला? सर ये जो बीडी है, दोबारा से हाँ जी। बी, सर बी और डी ये भी तो एक ब्रांच है। हमने शॉर्टेस्ट पॉसिबल देखना कि उससे जस्ट कौन सी ज्वाइन कर रही है, जस्ट ज्वाइन। एस तो बहुत लंबी जा रही है, आगे तक जा रही है, उसमें एक और नोड आ गई। शॉर्टेस्ट पॉसिबल कौन कौन से ज्वाइन कर रहे हैं? एस तो आप कहीं चले जाओगे, पूरे सर्किट में चले जाओगे ना, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल 1 2 3 4, उसके जस्ट, उसके नियर में, बिल्कुल क्लोज में कौन सी ब्रांचेस हैं? उसके क्लोज में, उसके क्लोज में एक नोड ये, एक नोड ये, उसके क्लोज में कौन सी ब्रांचेस हैं? एक नोड 1 है, ये नोड 2 है, उसके क्लोज में एक ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच, आगे तो कहीं तक जाएगी ना वो। इसको तो एक ब्रांच आराम से बोल सकते हैं क्योंकि सीरीज में है। ओके, जबकि 2 एलिमेंट है, एक ब्रांच में 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट होना चाहिए तभी ब्रांच बनेगी। ओके, नाउ इसके क्लोज में एक ब्रांच ये हो गई, इसके क्लोज में एक ब्रांच ये हो गई, इसके क्लोज में एक ब्रांच ये हो गई, इसके क्लोज में एक ब्रांच ये होगी। आपने पहले बोल दिया सर नोड तो ये है ही है, ये भी नोड, सी भी एक नोड है। क्यों? क्योंकि इसके क्लोज में एक ब्रांच है, 2 ब्रांच है, 3 ब्रांच है, 4 ब्रांच है, बाकी नोड है ही नहीं है। क्यों नहीं है नोड? क्योंकि वहां 3 और 3 से ज्यादा ब्रांचेस नहीं है, इसलिए वो नोड नहीं है। तो इस सर्किट में 2 नोड्स हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रांचेस चेक करनी है। नोडल मेथड में पहले ब्रांचेस को चेक कर लो, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे ब्रांचेस को चेक करो ना करो, नोड्स को चेक करो। और नोड्स किस बेस पे चेक करोगे? इस बेस पे चेक करोगे। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस नाउ कि व्हाट इज अ नोड इन अ सर्किट। आई एम नॉट से कोई आंसर नहीं दे रहा मेरे को। यस स्टूडेंट्स, यस सर। इज इट क्लियर? अंकुश, Yes, आशीष, sir. यस सर। यस सर। बोथ आयुष, ओके यस स्टूडेंट्स। सर। इसका मतलब सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, ब्रांच तो देखो ना देखो, नोड जरूर चेक करना है। ब्रांच तो अपने पता लगे कि जहां पर 2 पॉइंट्स में कोई एलिमेंट है तो वो ब्रांच है। 2 या 2 से एक से ज्यादा एलिमेंट, कोई भी 2 नोड्स के बीच में एक या एक से ज्यादा अगर एलिमेंट्स है तो वो तो ब्रांच है ही है। अब नोड कौन सा होता है? जहां पर 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेस मीट करती हैं। तो नोड चेक कर ली, एक होगी बी, एक होगी सी। अब ये बताओ, एक नीचे भी एक नोड है, सिंगल नोड, जिसको बोलेंगे H, G, F, E। उसमें कितनी ब्रांचेस मीट कर रही हैं? रेज हैंड्स। ये जो कॉमन नोड है इसको बोलते हैं कॉमन नोड। इसमें कितनी ब्रांचेस मीट कर रही हैं? इस डायग्राम को ध्यान से देखना, वो ये इसी डायग्राम का शॉर्टकट है नीचे से।
यस, कितनी ब्रांचेस मीट कर रही हैं इस कॉमन नोड पे? इसको एक ही नोड मानेंगे। इसमें और- कितनी ब्रांचेस मीट कर रही हैं? रेज हैंड्स, रेज हैंड्स। जो H, G, F, E है, जो कॉमन नोड है, इसमें कितनी ब्रांचेस मीट कर रही हैं और उनका नाम क्या है? रेज हैंड्स, रेज हैंड्स, रेज हैंड्स। आई विल गो स्टेप बाय स्टेप, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। बताओ, रेज हैंड्स। कितने बच्चे रेज हैंड्स कर रहे हैं? बहुत कम। यस, आई थिंक कितने? यस, यस रुद्रांश, स्पीक आउट। सर 4। वेरी गुड। कौन कौन से नेम करो? AH BG AH BG CF CF and D। BE। वेरी गुड। AH BG CF and D, वेरी गुड। 4 ब्रांचेस। तो ये भी एक नोड है, जो इसको बोलेंगे कॉमन नोड, और इसको बना लेंगे ग्राउंड नोड। क्या बना लेंगे? इसको अज्यूम कर लेंगे ग्राउंड नोड। नीचे वाली नोड को ग्राउंड नोड अज्यूम कर लेंगे, ओके। और ऊपर वाली नोड में अज्यूम कर लेंगे वोल्टेज VB एंड VC। लेट द नोड वोल्टेज, पहला स्टेप क्या है? नोड्स डिटरमिन करेंगे। नोड्स 3 बन गई, एक होगी B, एक होगी C और एक होगी कॉमन नोड, इसको बोलेंगे ग्राउंड नोड, ओके। नोड तो ये भी है, लेकिन एक कॉमन नोड है। ये क्या आपकी कॉमन नोड? कई नोड्स को मिलाकर एक नोड बन रही है, इसको बना लेंगे ग्राउंड नोड। क्या बना लेंगे इसको? ग्राउंड नोड। और ग्राउंड नोड की वोल्टेज कितनी होती है? 0। ग्राउंड नोड की वोल्टेज कितनी होती है? 0 वोल्ट। सर ग्राउंड नोड के लिए ये असम्पशन है, उसमें ये स्टेप्स हैं, नोडल मेथड के ये स्टेप्स हैं। जैसे हम वहां, जैसे मैश लॉ में हम लोग एक मैश में मैश करंट लेती है ना, यहां पर नोड वोल्टेजेस लेते हैं। एक को ग्राउंड लेते हैं, बाकी 2 को हम लोग वैल्यू से लेते हैं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ओके। सो ये बाद में पता लग जाएगा ग्राउंड के लिए। अगर मैं इसको एक और ले लूं तो बहुत, फिर 3 इक्वेशन बन जाएंगी, ओके। तो एक को मैंने ग्राउंड मान लिया। क्या मान लिया? जो कॉमन नोड है। ग्राउंड यहां भी ले सकते हैं, लेकिन यहां लेने से कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ग्राउंड नोड हमेशा हटके जहां पर मैक्सिमम ब्रांचेस मीट करती हैं, देखो नीचे नीचे मीट करती हैं, इसको नॉर्मली ग्राउंड में लेते हैं। अभी बिगिनिंग में मैं बोलूंगा ग्राउंड नोड को हमेशा नीचे लो, बिगिनिंग में बोल रहा हूं, बाद में आपको चेंज कर दूंगा और बता भी दूंगा। ग्राउंड नोड इनिशियली आप अज्यूम कर लो कि नीचे लेंगे हम लोग, विल टेक एट द बॉटम, जहां पर कई ब्रांचेस मीट करती हैं। सर, हाँ जी सर जो ये सर आपने HGF सर एक ये कॉमन पॉइंट में क्यों ले रखा है? मैंने इसलिए ले रखा है बेटा, क्योंकि इसके बीच में, इसके और इसके बीच में ये कॉमन पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। करंट फ्लो कर रहा है, बिकॉज करंट फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस, करंट फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन ये कॉमन है। कॉमन क्यों? एक मिनट, वेरी गुड यू आस्क, कोई बात नहीं। ये इसलिए क्या है बेटा, क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट नहीं। अगर एलिमेंट कोई आता तो पोटेंशियल डिफरेंस बनता ना, इज इट राइट? तब जो कॉमन पोटेंशियल वाली चीजें होती है उनको कॉमन, एक सिंगल पॉइंट, तभी तो HGFE को मैंने कॉमन बना लिया, ये कॉमन है क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम है। जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है उनको हम सिंगल पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं, जिन, क्योंकि इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। जब कोई 2 पॉइंट्स के बीच में कोई एलिमेंट नहीं होता, वो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है। अगर उन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है तो हम उसको कॉमन पॉइंट से भी शो कर सकते हैं, rather than having separate points like this. सर अगर FE में कोई एलिमेंट होता? आवाज नहीं आई क्लियर, क्या कह रहे हो? सर FE में कोई एलिमेंट होता तो? अगर एलिमेंट होता तो फिर वो ब्रांच बनती, वो भी कराऊंगा सर क्वेश्चन। फिर जब कौन? यहाँ मैं एक वो भी लूंगा। सर नोडल क्या होगा फिर? हाँ, फिर वो क्या चीज? कॉमन नोड कौन सा होगा? अगर यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस हो गई तो ये एक ब्रांच बन जाएगी, तो फिर सब F तक रहेगा, वो फिर E नहीं रहेगा, तो ये एक ब्रांच बन जाएगी। CDEF एक ब्रांच बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक ब्रांच बन जाएगी। थैंक यू तब
ई और एफ कॉमन पोटेंशियल नहीं होंगे, तब ई और एफ कॉमन पोटेंशियल नहीं होंगे, तब कॉमन पॉइंट्स होंगे ओनली एच जी एफ, इसमें रेजिस्टेंस आ गया, तब ये एक ब्रांच बन जाएगी, एक ब्रांच में सेम करंट फ्लो करता है ना, तो ये एक ब्रांच बन जाएगी, तो ई नहीं रहेगी। बट अभी मेरा क्वेश्चन है कि ई में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अभी हम इसी पे फोकस करेंगे। इज इट राइट? तो सबसे पहला पॉइंट क्या था मेरा, स्पीक आउट। सबसे पहला पॉइंट क्या नोडल एनालिसिस में, सबसे पहले ब्रांच क्या निकालना है, नोड्स। क्या निकालनी है, नोड्स। नोड कौन से पॉइंट होते हैं जहां पर 3 या मोर देन 3 ब्रांचेस मीट करते हैं, और जो नीचे वाला नोड होगा उसको मैं ग्राउंड नोड लूंगा, जो नीचे वाला नोड होगा उसको मैं क्या लूंगा, ग्राउंड नोड लूंगा। जो ऊपर वाले नोड्स होंगे उसमें मैं अज्यूम करूंगा पोटेंशियल बी नोड है तो वी ले लूंगा, और सी है तो वीसी पोटेंशियल लूंगा। लेट द पोटेंशियल ऑफ नोड सी बीवीसी। ये थोड़ा दूर है, मैं जरा पास इसको लिख देता हूं। ओके, सो आई हैव अज्यूम्ड, दो नोड्स बन गई मेरी, उनकी नोड वोल्टेजेस मैंने अज्यूम कर ली, और नीचे का जो कॉमन नोड था उसको मैंने ग्राउंड बना लिया। ग्राउंड जो होता है उसकी वोल्टेज 0 होती है, तो उसको जी से शो करते हैं हमेशा। ग्राउंड नोड को हमेशा जी से शो करते हैं, बाई चांस यहाँ जी यूज कर दिया ना मैंने, एक्चुअली जी से यूज करते हैं, और उसका ये और उसकी वोल्टेज 0 होती है। इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, देन आई राइट, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना आपको? Now I'll come to this. Now I'll write nodal equations. जैसे हम लोग मैश लॉ में क्या करते थे, मैश मेथड में मैशेस डिटरमिन करते थे, नोडल मेथड में नोड डिटरमिन करेंगे। मैश मेथड में मैश करंट अज्यूम करते थे, नोडल मेथड में नोड वोल्टेज अज्यूम करेंगे। वहां पर करंट अज्यूम करते थे, यहां वोल्टेज करते थे, बिल्कुल उल्टा चलता है। वो केवीएल बेस्ड है, नोडल मेथड किसके बेस्ड है, नोडल मेथड इज बेस्ड ऑन केसीएल। आई प्रूव नाउ, नोडल मेथड इज बेस्ड ऑन केसीएल। मैश मेथड में हम लोग क्या अज्यूम करते थे, मैशेस, कितने मैश होंगे, यहां पर अज्यूम करेंगे टाइम हो गया, नोड होंगे। हाँ जी, कोई बोला कुछ? सर टाइम हो गया। कोई दिक्कत नहीं, मुझे ही पता है टाइम हो गया, कोई बात नहीं होती, मैं अभी आपको फ्री कर देता हूँ। ठीक है सर, ज्यादा हो जाएगा। कोई बात, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा इसके लिंक में बताऊंगा, मैं आगे नहीं बताऊंगा, दैट इज मस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर नोडल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नोडल और मैश के अंदर हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, मैश में क्या अज्यूम करते हैं हम लोग, यस क्लास? सर मैश करंट। मैश करंट नहीं करते बाबा, पहले मैशेस देखते हैं कितनी मैशेस हैं, इसमें देखेंगे कितने नोड हैं, पहले इसमें देखेंगे नोड कितने हैं, दूसरा अज्यूम करेंगे नोड वोल्टेजेस, अज्यूम करेंगे नोड वोल्टेजेस, अज्यूम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू फाइंड हाउ मेनी नोड्स, विल ट्राई टू फाइंड हाउ मेनी नोड्स, हाउ मेनी नोड्स आर देयर, कितनी नोड्स हैं गिवन नेटवर्क में। बस इसके बाद मैं छोड़ दूंगा, बिकॉज आपको फिर वहां भी ज्वाइन करना है। और दूसरा क्या अज्यूम करेंगे, अज्यूम क्या करेंगे, नोड वोल्टेजेस, उसमें जो नीचे वाले को हैं उसको ग्राउंड अज्यूम करेंगे,
और ऊपर वाले को उनकी वैल्यूज। अगर बी नोड है तो नोड वोल्टेज वी भी ले लेंगे, वी सब्सक्रिप्ट बी। सी नोड है, वी सब्सक्रिप्ट सी। ओके, इसके बाद हम अज्यूम करेंगे नोड वोल्टेज, नोड करंट्स, नोड इक्वेशन, नोडल इक्वेशंस। वहां पर मैश इक्वेशन करते थे, यहां पर नोडल इक्वेशन अज्यूम करेंगे। नोडल इक्वेशन एट, फर्स्ट ऑफ ऑल एट नोड बी एक इक्वेशन निकलेगी और दूसरी निकलेगी नोडल इक्वेशन एट नोड सी, वो नेक्स्ट क्लास में। इज इट राइट? इसकी फोटो खींच लो जरा एक बार, अमन एंड अंकुश, इसकी फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो बेटा। अंकुश, यस अंकुश गर्ग, सर कर दिया सर। वेरी गुड इजीली अंकुश। फोटो डाल दो। अमन यू ऑल्सो इन सी। यहां तक ही आज का लेक्चर करेंगे। हमने 3 चीजें सीखी हैं नोडल के अंदर, तो कोई बता दे लास्ट में एक रिकैप के लिए, व्हाट आर द 3 स्टेप्स? जल्दी से कोई हैंड रेज करके बता दे मुझे, what are the 3 steps we will take in while solving nodal equations? जल्दी से कौन बताएगा? we'll finish the class. अंकुश तुम बता दो, चलो अंकुश गुप्ता आप बता दो। सर हाँ जोर से। सर नोड्स में हमने सर मतलब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मतलब जो हमारा गिवन सर्किट है उसमें टोटल नोड्स कितने हैं। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट, वेरी गुड। हम सर उसके बाद हम नोडल वोल्टेज को अज्यूम करते हैं सर, कोई भी एक। हाँ नोडल वोल्टेज अज्यूम करते हैं, वेरी गुड। और उसमें सर, उसके एक नोड बाद को हम नीचे मतलब वाले को क्या लेते हैं? ग्राउंड current कहते हैं होता है। उसको, ग्राउंड नोड। गुड Ground अंकुश। लेते हैं सर नीचे हाँ उसके वाले। बाद थर्ड लास्ट क्या बोलेंगे? थर्ड क्या होगा? उसके बाद सर उसके बाद हम हर एक पर्टिकुलर ब्रांच में अलग अलग वोल्टेज निकालते हैं सर, नोडल वोल्टेज। वेरी गुड अंकुश। और उसके बाद क्या करेंगे?